کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ہزارہ کمیونٹی پر حملوں کے خلاف کوئٹہ میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے خواتین ونگ کی احتجاجی ریلی۔ پاکستان آرمی کے زیر اہتمام مالکنڈ کے ہیڈ کوارٹر پٹخیلا میں سپورٹس گالا کا انعقاد۔ ڈیرہ غازی خان میں غازی نامی گھوڑے نے 4 کلومیٹر کا فاصلہ 3 منٹ میں طے کر کے گھوڑ دوڑ جیت لی۔ فیصل آباد میں شہری سے 10 لاکھ روپے ہتھیانے والے ملزموں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر گونگے بہرے شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ ملتان اور سیالکوٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف مسلم لیگ نون کی احتجاجی ریلی اور مظاہرے۔ میرپور خاص، دادو اور سکھر میں نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاف کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج۔ او پی ڈی کا بائیکاٹ، علامتی بھوک ہڑتال۔ جیکب آباد میں معذور اتحاد کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں آنکھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ۔ اور حیدرآباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مسلم لیگ نون کی احتجاجی ریلی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، سب سے پہلے کچھ خبریں شامل کریں گے صوبہ بلوچستان سے۔ جعفر آباد میں ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث سیلاب متاثرین 20 ماہ سے خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جعفر آباد میں سیلاب متاثرین آج بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ این جی اوز اور ضلع انتظامیہ کی ملی بھگت سے بااثر زمینداروں کے پلاٹوں میں شیلٹرز فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ سیلاب متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ دوسری جانب ٹینٹوں میں صفائی کا انتظام نہ ہونے سے مچھروں کی بھرمار سے خیموں میں بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ غفلت کی مرتکب این جی اوز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ملک جلال الدین کاکڑ نے کہا ہے کہ برشور سے منتخب ہونے والے صوبائی وزیر نے ان کے حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، مگر اس کا کریڈٹ بعض سیاسی مخالفین لینا چاہتے ہیں۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے 4 سال کے دوران ہر چور میں گریڈ سٹیشن، سڑکوں کی تعمیر اور اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ واٹر سپلائی کی اسکیمیں مکمل کی گئی ہیں، مگر اب کچھ لوگ ترقیاتی اقدامات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام ان عناصر کے اصل چہروں کو خوب جانتے ہیں اور وہ ان کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عبدالوہاب کاکڑ، اختر کامریڈ اور ملک شوکت علی سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ جعفر آباد میں نادرا کے عملے کے ناروا سلوک کی وجہ سے شہری ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نادرا آفس کا عملہ عوام کی خدمت کی بجائے ان پر عذاب بن کر مسلط ہو گیا ہے اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کے سلسلے میں بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معمولی نکتے کو بہانہ بنا کر ضعیف اور معمر خواتین کے شناختی کارڈ بلاک کر کے انہیں سرکاری دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ اہل علاقہ نے الزام عائد کیا ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، جس کے باعث سیلاب متاثرین کے ہزاروں کارڈ رکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نادرا عملے کے ناروا رویے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ ہزارہ کمیونٹی پر حملوں کے خلاف ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی خواتین ونگ نے کوئٹہ میں احتجاجی ریلی نکالی اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے خلاف
कार्रवाई का मुतालबा किया। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी खवातीन विंग के ज़रिए तमाम कोयटा प्रेस क्लब से बलूचिस्तान असम्बली तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक खवातीन ने प्लाकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि कोयटा में दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हज़ारा कम्युनिटी पर हमले करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। शुरका ने चीफ जस्टिस से सूरत हाल का खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। इस मौके पर बलूचिस्तान असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया जिससे खवातीन विंग की मकामी खवातीन रहनुमाओं ने खिताब किया। और अब चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा। वाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन खैबर पख्तूनख्वा ने मुगवी पेस्को मुलाजिमीन की अदम बाजियाबी और CNG और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में सूबे को बिजली की सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। पेशावर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन की क़यादत यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल और सेक्रेटरी जनरल गौहर ताज कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 माह कबल माशुखेल के इलाके से पेस्को के 3 एहलकार सुहेल अहमद, अमीर खान और मोहम्मद फैयाज को अगवा किया गया। हुकूमत उनकी बाजियाबी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि CNG और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा किया जा रहा है जिससे गरीब आवाम बरह रास्त मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मगवी वापदा एहलकारों को बाजियाब कराया जाए और CNG और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। बसूरत दीगर सूबे भर को बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर-ए-एहतमाम मालकन के हेडक्वार्टर बटखेला में सवात स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़फ़रपाक में कौमी साही जिरगा बटखेला के रुकन अकबर आजम और MPA डॉक्टर जाकिरुल्लाह ने स्पोर्ट्स गाला प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर बटखेला में पाक आर्मी के कर्नल ज़ियाउल्लाह, मेजर सलाहुद्दीन और दीगर अफसरान के अलावा इलाके के अवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। उधर डिग्री कॉलेज थाना में कर्नल ज़हूर इस्लाम आफरीदी, लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज, मेजर अजीज और दीगर अफसरान और आर्मी के जवानों ने तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर कर्नल बाजवा और मेजर अजीज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालाकन डिवीजन के तमाम अजला में 1 अप्रैल से 31 मई तक 2 महीने स्पोर्ट्स सरगर्मियां जारी रहेंगी। इस मौका पर पाक आर्मी और ट्रेड यूनियन के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला पाक आर्मी की टीम ने जीत लिया, जबकि थाना में मालाकन ग्रीन क्रिकेट क्लब और थाना 11 के दरमियान इफ्तिताही मैच में मालाकन ग्रीन ने कामयाबी हासिल की। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सफर जारी है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने पेशावर में 6 और 7 अप्रैल को पश्तो आलमी कन्वेंशन के इनेकाद का फैसला किया है जिसका मकसद दुनिया को अमन का पैगाम देना है। पेशावर ऑफिसर मेस में ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि पश्तो अदबी चमन तिल महकमा सकाफत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन से दूसरी आलमी पश्तो कॉन्फ्रेंस पेशावर के नश्तर हॉल में मुनाकिद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के पख्तून दानिश्वर, शोरा और अदीब शरीक होंगे जो पश्तून जुबान, अदब और सकाफत के फरोग के हवाले से इजहार ख्याल करेंगे। उनका कहना था कि 2 दिन जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस के आखिर में करारदादें और एलामिया पेश होगा, जबकि कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया को ये बावर कराना है कि पश्तून कौम दहशतगर्द नहीं बल्कि अमन पसंद और इंसानियत से मोहब्बत करने वाली कौम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली लाल मोहम्मद खान ने कहा है कि बिजली बहरान पर काबू न पाया गया तो मालाकन डिवीजन के मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली मुश्तरका इस्तीफे पेश करेंगे। मालाकन में अपनी रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वजीर लाल मोहम्मद खान ने कहा कि 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को दी जाने वाली खुद मुख्तारी में बिजली बहरान का खात्मा मुमकिन है, मगर सूबाई हुकूमत गैर जरूरी कामों पर अरबों रुपए खर्च करके बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं उठा रही। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म की सरबराही में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कायम शुदा कमेटी का 3 साल मुकम्मल होने के बावजूद एक इजलास भी मुनक़िद नहीं हुआ। बिजली बहरान पर काबू पाने पर अगर इस तरह खामोशी इख्तियार की गई
तो मानकन डिवीजन के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पेशावर प्रेस क्लब में इज्तिमाई इस्तीफा पेश करेंगे। इस मौके पर आलमजेब खान और असद लाल खान भी मौजूद थे। और अब कुछ खबरें सूबा पंजाब से। पंजाब में सबसे पहली खबर गुजरावाला से। गुजरावाला में महकमा सुई गैस के चीफ इंजीनियर की जानिब से मुबैना तौर पर जाती पसंद और नापसंद के तहत फैक्ट्रियों की गैस बंद करने के खिलाफ पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से GT रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के दौरान सदर पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन मदनी और साबिक सदर गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख सरवत इकराम ने मुतालबा किया कि सनतकारों के साथ धमकियामेज रवैया अपनाने वाले चीफ इंजीनियर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। उनका कहना था कि पीर के रोज ओगरा एक्ट के मुताबिक टेक्सटाइल मिल्स में सुई गैस खोली जानी थी, मगर चीफ इंजीनियर सुई गैस ने वक्त गुजर जाने के बावजूद एक फैक्ट्री की गैस नहीं खोली, जिस पर फैक्ट्री मालिक ने चीफ इंजीनियर से राब्ता किया तो वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। बाद अज़ां सुई गैस की टीम और फैक्ट्री मुलाजमीन में झगड़ा हो गया, जिस पर आज पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी और GT रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। सियालकोट में जहां 14 घंटे की रोड शेयरिंग जारी है, वहीं शहरी इलाकों में मुतादिद सड़कों पर दिन के औकात में भी स्ट्रीट लाइट्स रोशन रहती हैं। बिल्कुल शहर इकबाल की बात है। शाहपुरा और डिफेंस रोड पर दर्जनों स्ट्रीट लाइट्स दिन के औकात में कई घंटे रोशन रही। मकामी दुकानदारों और लोगों का कहना है कि ये स्ट्रीट लाइट्स अक्सर दिन के औकात में रोशन रहती हैं, जबकि सनती शहर सियालकोट में 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इस हवाले से गैप को हुकाम से राब्ता किया गया तो तर्जुमान का कहना था कि स्ट्रीट लाइट्स के रोशन रहने की जिम्मेदार तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है। चलते हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के ज़रिए तमाम बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इस मौका पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और टायर नजरातिश करके सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाजी मुजाहरे में सूबाई वज़ीर औकाफ हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी, सेनेटर मलिक रफीक रजवाना, मेंबर कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद समेत मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की नाअहली के बायस बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और पंजाब में सनती और तिजारती सरगर्मियां खत्म होकर रह गई हैं। शुरका ने मुतालबा किया कि लोड शेयरिंग में कमी के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं। पाकपतन में मरकजी अंजुमन ताजरान और मुस्लिम लीग नून ने बदतरीन लोड शेयरिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली में बदतरीन लोड शेयरिंग के खिलाफ ख्वाजा सराउं ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। रैली के शुरका ने बी चौक में धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत बिजली के बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान हुकूमती जिम्मेदारों ने करप्शन करने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म नहीं की तो वो बिजली के बिलों की अदायगी रोक देंगे। उधर सदर सराफा एसोसिएशन राना फारूक की कॉल पर सराफा मार्केटों में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई, जबकि जिला पाकपतन में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ नूरपुर के करीब लोगों ने पाकपतन साहिवाल रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सियालकोट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली। पेरिस रोड पर मुस्लिम लीग नून के जिलाई ऑफिस से शुरू होने वाली रैली में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और रुकन सूबाई असम्बली राना आसिफ महमूद के अलावा पार्टी की जिलाई और सिटी तंजीमों के अहदेदार और कारकुनान शामिल थे। मुजाहिरीन पैदल चलते हुए चौक अल्लामा इकबाल पहुंचे, जहां उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे और बिजली की बदतरीन लोड शेयरिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि कौम ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी के हाथों तंग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय उनके मसाइल में इजाफा कर रही है। दूसरी जानिब रैली की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रही, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि इत्तेहादी जमातें अपने असलहा विंग्स के जरिए कराची के हालात खराब कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि गुजरावाला में निजी अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी नहीं मुमकिन है। दुनिया में कोई मुल्क पॉलिसीज में तसलसल के बगैर नहीं चल सकता। उनका कहना था कि बेहतर मनसूबाबंदी से गुर्बत और पसमानदगी पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि एक जानिब गैस की बंदिश से शहरी परेशान हैं और दूसरी जानिब हुकूमत कमीशन बटोरने के लिए 400 नए CNG स्टेशन को लाइसेंस जारी कर रही है। एहसन इकबाल ने रेंटल पावर मंसूबों को कमीशन मंसूबे करार देते हुए उन पर अदालत के फैसले को आजाद अदलिया का समर करार दिया। डेरा गाजी खान में घोड़दौड़ के फाइनल मुकाबले में गाजी नामी घोड़ा 4 किलोमीटर का फासला सिर्फ 3 मिनट में तय करके हरीफों पर सबकत लेने में कामयाब हो गया। डेरा गाजी खान में बैन सूबाई शाहराह इंडस हाईवे पर होने वाली घोड़दौड़ के फाइनल में गाजी नामी घोड़े का मुकाबला हीरा नामी घोड़े से हुआ। खान बेला से आने वाले गुलाम हुसैन के हीरा नामी घोड़े को दौड़ के लिए मोस्ट फेवरेट करार दिया गया था। दौड़ के आगाज से ही हीरा ने बर्तरी हासिल किए रखी। ताहम आखिरी लम्हात में बाशी खान के गाजी नामी घोड़े ने अपने हरीफ पर सबकत हासिल करके रेस का पांसा पलट दिया और सनसनी खेज अंदाज में हीरा को शिकस्त दे दी। इस मौका पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सवार सैकड़ों शायकीन भी दोनों घोड़ों के आगे पीछे चलते हुए लुत्फानंदोज होते रहे। मरी से मुल्का खैबर पख्तूनख्वा की गिलियात में कोयले की गैर कानूनी कान अचानक गिरने के नतीजे में 2 अफराद दब गए, जिन्हें रेस्क्यू 1112 ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद जिंदा निकाल लिया। लैंडस्लाइड की बिना पर गिरने वाली गैर कानूनी कोयले की कान के बारे में इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और इलाके के लोग मौके पर पहुंच गए, जबकि मरी से रेस्क्यू 1112 की टीम ने खुसूसी लाइन के जरिए वहां फंसे दोनों अफराद को ऑक्सीजन की फरहमी का बंदोबस्त किया और भारी मशीनरी और कारकुनों के जरिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बायस दोनों अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद में शहरी से 10 लाख रुपए हथियाने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर गूंगे बहरे शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गूंगे बहरे शहरी इशारों की जुबान में इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। फैसलाबाद में गूंगे बहरे शहरी से 10 लाख रुपए हथियाने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार न करने के खिलाफ गूंगे और बहरे शहरियों ने जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया। एहतजाजी स्पेशल सिटीजन्स का कहना था कि पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने दोनों इतराफ की ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया। बाद में पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। वाज़ेह रहे कि 3 माह कबल नामजद मुलजिमान ने स्पेशल सिटीजन असगर अली से 10 लाख रुपए हथिया लिए थे। तहां मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और न्यूज इन 20 सेकंड्स के बाद खुशामदीद। बात हो रही है पंजाब की। पाक वतन में ट्रैफिक के 2 मुख्तलिफ हादसात में एक नौजवान जाम बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। आरिफ वाला गल्ला मंडी के आड़ती मोहम्मद अफसल का बेटा मोहम्मद अजहर मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि एक गांव 129 EB के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाली मोटरसाइकिल के साथ टकरा गया, जिसके बाइस वो शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल तो पहुंचाया गया मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। उधर पाकपतन के करीब तेज रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिल रिक्शों के आपस में तसादुम से मजहर यासीन, असलम, उस्मान और तनवीर जाम बहक, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मंडी सादिकगंज में सरकारी शिफाखाना हैवानात में 2 साल से वेटनरी डॉक्टर न होने से मवेशी पाल हजरात को जानवरों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर ना होने की वजह से इलाज के लिए लाए जाने वाले जानवरों को अद्वियात और इंजेक्शन खाकरोब और माशकी लगाते हैं, जबकि 2 वेटनरी असिस्टेंट तैनात हैं जो अक्सर गायब रहते हैं। ये अस्पताल 80 से ज्यादा देहात के हजारों जानवरों के लिए इलाज का वाहिद जरिया है, मगर डॉक्टर की अदम मौजूदगी की वजह से जानवर मूजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। उधर डॉक्टर की रिहाइशगाह पर शफाखाने के माशकी हाफिज गुलाम ने कब्जा करके गाय भैंसे बांधकर सरकारी कोठी को जानवरों के बाड़े में तब्दील कर दिया। अहले इलाका ने महकमा लाइफ स्टॉक से डॉक्टर की फौरी तैनाती का मुतालबा किया है।
और शरीफ में तेजी से बढ़ती आबादी के बायस शहरी भी रोजमर्रा के मसाइल का शिकार हो गए हैं। इस हवाले से देखेंगे रिपोर्ट अब्दुल गनी की। मुल्क की आबादी में जिस तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, इसी रफ्तार से इसके मसाइल भी पेचीदा तर होते जा रहे हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से भी तजावज कर चुकी है। बढ़ती हुई आबादी और सुलगते हुए मसाइल का शिकार और शरीफ के शहरी भी हैं। आबादी के तनासब से 20 साल कबल तामीर होने वाली सड़कों पर मौजूदा चलने वाली गाड़ियों के अंदाजे से ऐसे लगता है कि सड़कें सुकड़ती जा रही हैं। इन गाड़ियों की तादाद में रोज अफजू इजाफे के बायस ट्रैफिक मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अल शम्स चौक से रोड पर भारी ट्रैफिक रक्षों की भरमार से सरकारी दफातर, अस्पताल, तालिब इल्मों और कारोबारी अफराद का अपने रोजमर्रा कामों पर बर वक्त पहुँचना नामुमकिन होता जा रहा है। मुतासरा शेड्यूल के सबब बाज़ औक़ात लोग ज़हनी दबाव का भी शिकार हो जाते हैं। अफरा तफरी के आलम में हादसात में इजाफा, रोड ब्लॉकिंग रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। इस सूरत हाल को जन्म देने में शहरियों की तरफ से ट्रैफिक कानून की पाबंदी न करने, सड़कों का जरूरत के मुताबिक कुशादा न होना और दुकानदारों का तजावुजात करके फुटपाथों पर मुस्तकिल कब्जा जमा कर बैठ जाना ही नहीं, बल्कि सड़कों और बाजारों में दुकानों के आगे वाक़े थड़ों और फ्रंट खानचा फरोशों को किराए पर देना जैसे मुतअद्दिद इक़दामात भी शामिल है। तवानाई के बहरान से पैदा होने वाली सूरत हाल में 3 रोज़ा CNG बंदिश से सड़कों पर कम गाड़ियां, ज्यादा किराए की वसूली पर दंगा फसाद मामूल बन चुका है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत दरामद की जाने वाली आला मेयार की एयर कंडीशनर बसें लोकल रूट्स पर भी फराम करके शहरियों को आरामदेह सहूलत फराम करे। कैमरामैन अजरान खान के साथ अब्दुल गनी, लगा वक्त न्यूज और शरीफ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत दुरुस्त है, लेकिन वफाक में गलत लोग चुने गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में वो तलबा को लैपटॉप तकसीम कर रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा को लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था और मुल्क में मौशी खुशहाली थी, लेकिन एक आमिर के 10 साल दौरे हुकूमत में सब कुछ खत्म हो गया। इस आमिर ने अगयार के सामने कौम को बेच दिया और $10 अरब नाम ने हाथ दहशतगर्दी की जंग में झोंक दिए। उन्होंने कहा कि अगर $10 अरब मुल्क पर खर्च किया जाता तो आज ये हालात न होते। हमजा शहबाज ने कहा कि अगर 18वीं तरमीम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो सकती हैं तो लोड शेडिंग और बेरोजगारी जैसे मसाइल पर क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को इल्जाम देना गलत होगा। सिर्फ विफाक में ऐसे लोग चुन लिए गए हैं जिन्हें अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। जिस मुल्क का नंबर 3 नंबर पर अक़वाम आलम में हो, उसके पास अपना हाउस होल्ड को देने के लिए गैस नहीं। ये कैसा मंतक है? ये क्या चीज है? मैं समझता हूं कि सिर्फ नीयत की कमी है। हम जैसे लोगों में नीयत का खोट है। हम पहले अपना सोचते हैं, बाद में मुल्क का सोचते हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं और उनकी जमात नौजवानों के साथ मिलकर मुल्क को नया निजाम देगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर सियासी बुनियादों पर लैपटॉप की तकसीम पर वाइस चांसलर GCU को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केस की समाअत शुरू की तो दरखास्त गुजार असगर जावेद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत सियासी बुनियादों पर लैपटॉप तलबा तालिबात में तकसीम कर रही है। जिस यूनिवर्सिटी में लैपटॉप की तकसीम मंजूर नज़र तलबा तालिबात में की गई, जबकि मेरिट पर आने के बावजूद उन्हें लैपटॉप नहीं दी गए। फाजिल अदालत ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इंक्वायरी का हुक्म देते हुए दरखास्त गुजार की शिकायत का अजाला करने का भी हुक्म दिया है। नारोवाल में मुकामी तंजीम के ज़ेर-ए-एहतमाम ख़वातीन का सियासत में किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए MNA मोहतरमा सुरैया असगर ने कहा कि मर्द और ख़वातीन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। आज तरक्की के लिए भी दोनों को मिलकर ही चलना होगा। इसके लिए हमें अपनी तारीख और समाजी रिश्तों को देखना होगा। उनका यह भी कहना था कि ख़वातीन को जागीरदारी निज़ाम में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इल्म की रोशनी से महरूम रखा गया ताकि वो सारी ज़िंदगी अपने नाम निहाद आकाओं की दस्तनगर बनी रहे, मगर अब हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि आज की औरत अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करे। सुधार सोसाइटी की कोऑर्डिनेटर गुलनाज सईद ने कहा कि माशरे में ख़वातीन को इज्जत की निगाह से देखा जाए। इस मौके पर ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान में BT कॉटन की काश्त के खिलाफ मुल्तान में एहतजाजी रैली निकाली गई और खुसूसी सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। साक तंजीम के ज़ेर-ए-एहतमाम BT कॉटन इंसानी सेहत के लिए मुज़र के मौजू पर
मुनाकिदा सेमिनार के बाद चौक कचहरी मुल्तान तक रैली निकाली गई। शुरका ने रैली हुकूमत पाकिस्तान से मुल्क में बीटी कॉटन की काश्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए बताया कि बीटी कॉटन इंसानी, हैवानी सेहत, माहौल और जमीन की जरखेजी के लिए इंतहाई खतरनाक है। जुनियाती तौर पर तब्दील शुदा ये बीज तरक्की पजीर ममालिक की ज़राअत कंट्रोल करने के लिए मल्टी नेशनल कंपनीज की घिनौनी साजिश है। उन्होंने कहा कि बीटी कॉटन के मुज़िर असरात पर जामे तहकीक करवाकर गफलत के मुर्तकिब मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। साबिक विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून बहावलपुर मखदूम अली हसन गिलानी ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम को महंगाई के सुनामी के हवाले कर दिया है। शरीफ में मुस्लिम लीग यूथ विंग और MSF के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि उनका कहना था कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों के बाइस कौम का बच्चा बच्चा IMF के पास गिरवी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के हिदायत पर शहर में 6 अप्रैल को एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। कारकुन 6 अप्रैल को एहतजाजी रैली में शिरकत करके हुकूमती ताबूत में आखिरी कील ठोस दें। उन्होंने कहा कि हुक्मरान करप्शन और अकबा परवरी की वजह से बंद गली में पहुंच चुके हैं, अब उन्हें घर जाना ही पड़ेगा। जंग कैनाल रोड पर रेलवे फाटक न होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कई हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। कैनाल रोड गोजरा और फैसलाबाद रोड के वस्त में वाक़ है। ये सड़क शहर को सैटेलाइट टाउन से मिलाती है। इस शाहरा पर ट्रैफिक के हजूम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि स्कूलों में छुट्टी के वक्त यहाँ रश बढ़ जाता है। ट्रेन के गुजरने का भी कोई खास वक्त मखसूस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ फाटक न होने की वजह से हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा मौजूद रहता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कैनाल रोड पर फाटक लगवाया जाए ताकि वो किसी भी हादसे से महफूज रह सकें। नारावाल में महकमा वापडा की जानिब से तैनात मजिस्ट्रेट के ड्यूटी से मुसलसल गायब होने की वजह से मुकामी लोगों ने पुरानी कचहरी में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लैक कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहरीन ने वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि वो हर माह केस की तारीख पर हाजिर होते हैं, लेकिन नारावाल में एक दिन के लिए तैनात होने वाले मजिस्ट्रेट के ड्यूटी पर न आने की वजह से तकरीबन 69 केसेस पिछले कई माह से इल्तवा का शिकार है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ड्यूटी पर मामूर रीडर उनसे पैसे लेकर अगले माह की तारीख दे देता है और सालीन अगली तारीख लेकर मायूस घरों को लौट जाते हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया। और आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध। सिंध धरती में सबसे पहले बात होगी मीरपुर खास की। पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन मीरपुर खास डिवीजन की जानिब से मुतालबात के हक में नवे रोज भी हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। सिविल अस्पताल मीरपुर खास और डिवीजन भर के नर्सिंग स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात के हक में नवे रोज भी एहतजाज जारी रहा और सिविल अस्पताल से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत जमहूरियत की दावेदार तो बनती है, लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। उनका कहना था कि उन्हें 2 रोज में मुतालबात की मंजूरी के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुतालबा किया है कि टाइम स्केल के साथ साथ दीगर मुतालबात को भी मंजूर किया जाए और पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह सिंध की नर्सों को भी उनके बराबर तनख्वाह दी जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते वो टोकन हड़ताल का सिलसिला जारी रखेंगी। सखर में पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए OPD का बायकॉट किया और अलामती भूख हड़ताल की। गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल सखर के पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने जिला सदर अरशद पठान, अब्दुल सत्तार मिरानी और दीगर की क़यादत में अपने मुतालबात के हक में 2 घंटे OPD का बायकॉट करके अलामती भूख हड़ताल की और अस्पताल के मरकजी गेट के सामने धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कराची के वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जायज़ मुतालबात को मंजूर किया जाए। बसूरत देकर एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी।
दादू में पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों ने तीसरे रोज भी अपने मुतालबात के लिए जिला भर के अस्पतालों की तालाबंदी करते हुए ओपीडी का बायकॉट किया। मुलाजिमीन ने सिविल अस्पताल दादू से हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर प्रेस क्लब दादू के सामने एहतजाज दिया और धरना दिया और जिला भर के अस्पतालों की मुकम्मल तालाबंदी कर दी। इस मौका पर मुलाजिमीन ने कराची वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज और शेलिंग की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों के जायज मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अरबाब बिलाल ने पार्टी क़यादत से अपील की है कि वो पार्टी की तंजीम साजी पर तवज्जो दें और पुराने नजरियाती कारकुनान को नजरअंदाज करने का सिलसिला बंद किया जाए। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के आवाम को शऊर और जद्दोजहद का दरस दिया, जिसके बायस उन्हें साम्राज्य कुव्वतों ने झूठे मुकदमात में शहीद करा दिया। डॉक्टर बिलाल अरबाब ने कहा कि अब भी साजिशी अनासिर पीपल्स पार्टी को खत्म करने के दरपे हैं, लेकिन उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी डिक्टेटरों का मुकाबला किया है और अब भी जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। सूबा सिंध से खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां एक ब्रेक। वेलकम बैक। जैकबाबाद में माजूर इत्तेहाद की जानिब से अपने मुतालबात के हक में आंखों पर स्याह पट्टी बांधकर अनोखा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। डिसेबल राइट्स नामी माजूर इत्तेहाद की तंजीम के एक दर्जन के करीब माजूर अफराद ने प्रेस क्लब के सामने अपने मुतालबात के हक में आंखों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया और मुतालबात के हक में नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बैनर्स और फ्लाई कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। माजूर अफराद ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि जैकबाबाद की इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें सहूलतों और ज़कात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मेरठ में जीएस सिंध महाज की जानिब से सिंध के हुकूक के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई है। एहतजाजी रैली जीएस सिंध महाज के मरकजी रहनुमा अमर जुनेजो और कमरुद्दीन जतयाल की क़यादत में सिविल अस्पताल से प्रेस क्लब तक निकाली गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के अवाम हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज के बायस तो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, जबकि सिंध में तेल, गैस, कोयला और दीगर कुदरती वसाइल होने के बावजूद भी सिंधी नौजवान बेरोजगारी और महंगाई के सबब खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। उनका ये भी कहना था कि सिंध के कुदरती वसाइल पर मुकामी अफराद को नजरअंदाज करके बाहर से आने वाले अफराद को नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि लापता होने वाले कारकुनान को फौरी बाजियाब कराया जाए। हैदराबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर मोहम्मद अफजल गुज्जर, हनीफ सिद्दीकी, नसीर कुरैशी, आसफा रियाज और दीगर ने कहा कि हुक्मरान मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। उनका मंशूर कमीशन और करप्शन है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार मायूस कुन और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग, करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के हाथों मजबूर होकर लोग जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। माजी में कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं रही। उनका ये भी कहना था कि तवानाई के बहरान के बायस सनतें बंद और मईशत तबाह हो रही है, जबकि हुकूमत की करप्शन की वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब तर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को मुल्क के साथ साथ अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज और खुशहाल बनाने के लिए मुस्लिम लीग का साथ देना होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ही अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी से निजात दिला सकती है। सखर में टीचर्स ने वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की यकीन दहानी पर एहतजाजी तहरीक खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मुकामी स्कूल के लेक्चरर सईद कुरैशी, अब्दुर्रहमान, सलमा लतीफ और दीगर ने सखर प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पब्लिक स्कूल सखर के तमाम असातिज़ा, लेक्चरर और मुलाजमीन ने वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह की यकीन दहानी पर एहतजाजी तहरीक खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर ने 1 माह में मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि किसी मुलाजिम के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
میرپور خاص میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 5 اپریل سے شروع ہوں گے۔ چیئرمین بورڈ شفیق احمد خان کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں 121 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ امتحانات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امتحانات میں شریک تمام طلبہ و طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ بورڈ کی پوری کوشش ہے کہ امتحانات شفاف اور نقل سے پاک ہوں، جس کے لیے تعلیمی بورڈ نے چاروں اضلاع میرپور خاص، سانگھڑ، تھرپارکر اور عمرکوٹ کے امتحانی مراکز کے نگران امتحانات کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ چلتے ہیں گھوٹکی میں کارکنوں پر پولیس تشدد کے خلاف خیرپور میں اہل سنت والجماعت کے کارکنوں نے تیڈری بائی پاس پر احتجاجی دھرنا دیا اور ٹائر جلا کر پنجاب اور کراچی جانے والی ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ دھرنے میں شریک مشتعل افراد نے قومی شاہراہ پر ٹائر جلا کر ایس پی گھوٹکی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گھوٹکی میں پولیس نے اہل سنت والجماعت کے کارکنان پر ظلم اور تشدد کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گھوٹکی میں امن و امان برقرار رکھنے اور اہل سنت والجماعت کے کارکنان کے ساتھ زیادتیاں بند کرانے کے لیے ایس پی کو فوری تبدیل کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ ماکی میں ناصر خان نظامانی کو وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کا مشیر بنائے جانے کی خوشی میں ریلی نکالی گئی۔ سینکڑوں کارکنوں اور شہریوں نے سندھ کونسل اور ممبر فنکشنل لیگ شریف پپو راجپوت کی قیادت میں ریلی نکالی، جو مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی ماتلی پریس کلب جا کر ختم ہوئی، اور یہاں ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پپو راجپوت، فرحان احمد اور راجہ عبدالجبار کشمیری سمیت دیگر نے کہا کہ حکومت نے ناصر خان کو مشیر بنا کر کارکنوں اور عوام کے دل جیت لیے ہیں، جس سے ضلع بدین کے عوام کے مسائل کے حل میں مدد ملے گی اور ترقیاتی کاموں میں بھی اضافہ ہوگا۔ بعد ازاں کارکنوں اور شہریوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ کراچی سے خیبر تک کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہیے۔